خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں، ان کو آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھی، اس اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس نے ان کو مال اور حسن دیا تھا۔ وہ چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہو، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ دھرمی شاید وہ بد نصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا، اس فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ سب کہہ سکتی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرہ پھیرے، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، سڑک کے ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پہ یہ اعزاز اسے ملنا ہی تھا، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پہ اٹک سا گیا تھا۔ اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی، وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بیوی گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک قدرے سنسان تھی، گو کہ وقفے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھی، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھی۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گیا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بیوی تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا، اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ہوں ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے شیشے چڑھایا، سارے لوگ بند کیے، چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے موند لی۔ ڈیڑھ عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، تو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ پرانا حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا، ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی، بے اختیار سیٹ پہ طے کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے ہوا جلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورہ طلاق کی 3ری آیت آخر سے پڑھنے لگی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈھال پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعا کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے، اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ اور حق زدہ، بند گاڑی جیسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر، یا سمندر کی تہہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا، یہ میرے دل میں کیسے آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی، اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ۔ اس کے خیال کی روح بھٹکنے لگی، پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں، اگر وہ نہ چاہے تو ان منکرین کوئی سانسیں روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند چیزوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی، باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانسیں ان کو ملی مہلت کی علامت ہیں۔ محمل بی بی، کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہو، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا، پھر تم کیوں ہوئی؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی، کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں میں سے مایوس ہو گئی، ان پہ کڑنے لگی۔ پھر کیوں؟ وہ کسی کی ہٹ درمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی اللہ تیرے سوا پاک ہے تو،
بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گالوں پہ لڑا رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پہ کھولتے ہی بدک اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سا تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا، پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسرے کی تحقیر کیسے؟ اس کے آنسو ابھی بہہ ہی رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھی اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی سے لگتا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ ساتھ والے بنگلے پہ پڑی۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہ سب رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پہ کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھنگالا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس ضرور لینے آؤں گی۔ پکڑ لو نا۔ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹ زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی جانب بولی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا۔ یہ شاید اس کیلیگرافی کے کناروں پہ لگی افشاں کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں ابیضا تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیواروں کے قریب آئی۔ کیلیگرافی بہت خوبصورت تھی۔ اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم پہ۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ وہ مسحور اسی طرح گردن اونچی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہیں پا رہی تھی۔ جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑ گئی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پہ آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہ تھی، اے لوگو جو ایمان لائے، جو تم میں سے کسی ایک پہ موت حاضر ہو جائے۔ اوہو، مجھے کیا ہو گیا؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے تو نہیں والی؟ اف معمر، فضول مت سوچو اور سبق پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا، یہ آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیات پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے ورق الٹے۔ صبر کرنے والے اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا۔ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی، ایک نظر سے سب گزرتی جا رہی تھی اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پہ مرے گا۔ وہ حمل کا دم گھٹنے لگا۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا، لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔
तभी आया अम्मा इसे दरवाजे में नजर आई। इनके हाथ में एक चिट थी। वो मैडम मिसबा के पास गई और चिट इनकी तरफ बढ़ाई। मैडम ने लेक्चर रोक दिया और चिट थामी। महमल बिना पलक झपके इनको देख रही थी। मैडम मिसबा ने चिट पढ़कर सर उठाया, एक निगाह पूरी क्लास पे डाली, फिर चेहरा माइक के करीब किया। महमल, इब्राहिम प्लीज इधर आ जाए। और इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। वो जान गई थी कोई मरने वाला नहीं था, अब किसी को नहीं मरना था। इसका नाम पुकारा जा रहा था और इसकी एक ही वजह थी, जिसे मरना था वो मर चुका था। कहीं कोई इसका प्यारा मर चुका था। कुरान फाल नहीं निकालता, सिर्फ आने वाले हालात के लिए तैयार करता था। यकीनन इसके आयात पढ़ने से कब ही कोई मर चुका था। वो नीम जहाँ कदमों से उठी और मैडम की तरफ बढ़ी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। सदियों पहले किसी के कहे गए अल्फाज की बाज़गश्त इसे सारे हाल में सुनाई दे रही थी। बाकी सारी आवाजें बंद हो गई थी। इसके कान बंद हो गए थे, जबान बंद हो गई थी। बस वो एक आवाज इसके जहन में गूंज रही थी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है। वो बमुश्किल मैडम मिसबा के सामने खड़ी हुई। जी मैडम, आपका ड्राइवर आपको लेने आया है, इमरजेंसी है, आपको घर जाना। मगर वो पूरी बात सुने बगैर ही सीढ़ियों की तरफ भागी। नंगे पाँव जीने पलांती वो तेजी से ऊपर आई थी। जूतों का एक रे एक तरफ रखा था, मगर महमल को इस वक्त जूतों का होश न था। वो संगमरमर के फर्श पे नंगे पाँव दौड़ती जा रही थी। वो फ्रांस चचा की अकॉर्ड सामने खड़ी थी। ड्राइवर दरवाजा खोले मुंतजिर खड़ा था। इसका दिल डूब कर उभरा। बीबी आप प्लीज खामोश रहो। वो बमुश्किल जब्त करती अंदर बैठी और जल्दी चलो। इसका दिल यूं धड़क रहा था गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। आगा हाउस का मेन गेट पूरा खुला था। बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी। ड्राइववे पे लोगों का जमगफीर इकट्ठा था। गाड़ी अभी गेट के बाहर सड़क पे ही थी कि वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी। नंगे पांव तारकोल की सड़क पे चलने लगे, मगर इस वक्त जलन की परवाह किसे थी। इसने रश में घेरे आगा जान को देखा, वो फ्रांस चचा को देखा, हसन को देखा। वो सब इसकी तरफ बढ़े थे, मगर वो अंदर की तरफ लपक रही थी। लोगों को इधर उधर हटाती हुई नवाजों तक पहुंचना चाहती थी जो लॉन से आ रही थी। औरतों के बेन रोने, आहो बका की आवाजें। लोग हटकर इस सफेद यूनिफॉर्म और गुलाबी स्कार्फ वाली लड़की को रास्ता देने लगे थे। वो भागती हुई लॉन तक आई और फिर घास के दहाने पे बेख्तियार रुक गई। लॉन में औरतों का एक हुजूम इकट्ठा था। दरमियान में चारपाई रखी थी, इस पे कोई सफेद चादर ओढ़े लेटा था। चारपाई के चारों तरफ औरतें रो रही थी। इनके चेहरे गुटमुट हो रहे थे। एक फिजा चच्ची थी और हाँ, नायमा चच्ची भी थी, और वो सीने पे 2 हत्तर मार कर रोती रजिया फुप्पो थी, और वो ऊंची आवाज में बेन करती महताब ताई थी। सब तो इधर मौजूद थे, फिर कौन था इस चारपाई पे? कौन था वो? इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वहाँ सारा खानदान इकट्ठा था, बस एक चेहरा न था। अम्मा, इसके लब फड़फड़ाए। इसने आंखें इन्हें पुकारने के लिए लब खोले, मगर आवाज ने कोई साथ छोड़ दिया। वो दहशत से इधर उधर देखने लगी। शायद इसकी माँ किसी कोने में बैठी हो, मगर वो कहीं न थी। इसकी माँ कहीं न थी। महमल, महमल, वो औरतें इसे पुकार रही थी, उठ कर इसे गले से लगा रही थी। किसी ने रास्ता दिया तो कोई मैयत के पास से हट गया, कोई इसे हाथ से पकड़कर चारपाई के करीब ले आया। किसी ने शानों पे जोर देकर इसे बिठा दिया। किसी ने मैयत के चेहरे से सफेद चादर हटा दी। कौन क्या कर रहा था, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी आवाजें आना बंद हो गई थी। ईद गिर्द की औरतों के लब हिल रहे थे, मगर वो सुन न पा रही थी कि वो क्या कह रही है, रो रही है या हंस रही है। वो तो बस यकटिक बिना पलक झपके इस दर्द चेहरे को देख रही थी जो चारपाई पे आंखें मूंदे लेटा था। नथनों में रुई डाली गई थी और चेहरे के गिर्द सफेद पट्टी थी। वो चेहरा वाकई अम्मा से बहुत मिलता था, बिल्कुल जैसे अम्मा का चेहरा हो, और शायद वो अम्मा का चेहरा ही था। इसे बस एक पल लगा था यकीन आने में, और फिर इसने चाहा कि वो भी धाड़े मार कर रोने लगे, नोहा करे, बेन करे, जोर जोर से चिल्लाए। मगर वो रहमतुल लिल आलमीन के कहे गए अल्फाज, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। और इसके लब खुले रह गए। आवाज हलक में ही दम तोड़ गई। जुबान हिलने से इनकारी हो गई। इसका शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर पीटे, सीने पर 2 हत्तर मार कर बेन करे, दुपट्टा फाड़ डाले और इतना चीख कर रोए कि आसमान हिल जाए। और फिर इसने हाथ उठाए भी, मगर नोहा करने वाली अगर तौबा किए बगैर मर गई तो इसके लिए तारकोल के कपड़े और आग के शोले की कमीज होगी। जो गरीबान चाक करे और रुखसारों पे तमाचे मारे और बेन करे, वो हम में से नहीं। ये हिदायत तो अबद तक के लिए है। इसके हाथ उठने से इनकारी हो गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लब खामोश थे। इसे रुलाओ, इसे कहो ऊंचा रोले, वरना पागल हो जाएगी। इससे कहो दिल हल्का कर ले। बहुत सी औरतें इसके करीब जोर जोर से कह रही थी, मेरी बच्ची
ताई मेहताब ने रोते हुए इसे गले से लगा लिया। वो इसी तरह साकित सी बैठी माँ की मैयत को देख रही थी। आंखों से आंसू गिर कर गर्दन पे लुढ़क रहे थे। इसका पूरा चेहरा भीग गया था, मगर जुबान नहीं हिलती थी। मुसर्रत तो ठीक ठाक थी, फिर कैसे? बस सुबह कहने लगी सीने में दर्द है, हम फौरन अस्पताल लेकर गए। मगर अधूरी अधूरी सी आवाजें इसके गिर्द से आ रही थी, मगर इसे सुनाई न दे रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इसे लगा इसे चक्कर आ रहे हैं। अजीब सी घुटन थी। इसका सांस बंद होने लगा था। वो एकदम उठी और औरतों को हटाती अंदर भाग गई। किसी ने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी। एक दफा, दो दफा, फिर तीसरी दफा इसे घुटनों पे सर रखा, सर होले से उठाया। दरवाजा बज रहा था। वो आहिस्ता से उठी, बेड से उतरी, स्लीपर पाँव में डाले और कुंडी खोली। बाहर फिजा चच्ची खड़ी थी। महमल बेटा, तुम्हारे आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं, आती हूँ, इसने होले से कहा तो फिजा चच्ची पलट गई। वो कुछ देर यूं ही इधर खड़ी रही, फिर बाहर आ गई। सीढ़ियों के करीब लगे आईने के पास से गुजरते हुए वो पल भर को रुकी। इसका अक्स भी रुककर इसे देख रहा था। हल्के नीले रंग की शलवार कमीज पे सफेद मलमल का दुपट्टा सर पे लिए वो कमजोर पसमर्दा महमल ही थी। हाँ, शायद वो ही थी। सफेद दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा कुमलाया हुआ लग रहा था। आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। आगा जान के कमरे में सब चच्चा और चचियां मौजूद थी। वसीम भी एक तरफ खड़ा। आओ महमल। इसे आते देखकर आगा जान ने सामने सोफे की तरफ इशारा किया। आज अम्मा को गुजरे चौथा दिन था और घर वालों का रवैया पहले की निस्बत अब खासा नरम था। वो चुपचाप सोफे पे बैठ गई। उस सुबह जब मुसर्रत की डेथ हुई, इसने दर्द शुरू होते ही ये कुछ चीजें वसीयत की ही थी तुम्हारे लिए। इसे लग रहा था वो अब मजीद नहीं जी पाएगी। हमने सोचा कि तुम्हें दे दी जाए। उन्होंने एक तरफ रखा डब्बा उठाया। महमल ने सर उठाकर डब्बे को देखा। ये डब्बा अम्मा के जेवरात का था। वो इसे हमेशा ताला लगाकर अलमारी के निचले खाने में रखती थी। ये एक डब्बा था, इसकी ये चाबी है, तुम खुद देख लो। और साथ ये कुछ रकम थी, इसकी जमा पूंजी। इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूं, मगर मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हारे ही हवाले कर दूं तो तुम बेहतर फैसला कर सकती हो। उन्होंने एक फूला हुआ लिफाफा डब्बे के ऊपर रखा। महमल ने आहिस्ता से लिफाफा उठाया और खोल कर देखा। अंदर हजार के कई नोट थे। शायद अम्मा ने इसकी जहेज के लिए रखे थे। इसका दिल भर आया। इसने लिफाफा एक तरफ रखा और चाबी से कासनी डब्बे का ताला खोला और अंदर कुछ जेवरात थे, खालिस सोने के जड़ाऊ जेवरात। इसने डब्बा बंद कर दिया। मालूम नहीं अम्मा ने कब से संभाल रखे थे। वसीम समेत सब लोग इस वसीयत के वक्त मौजूद थे। तुम सबसे पूछती हो मैंने तुम्हारा हक पूरा अदा कर दिया है या नहीं। इसने भीगी आंखें उठाई। सामने सोफों और कुर्सियों पे बैठे तमाम नफूस के चेहरे मुतमईन थे, मुतमईन और बेनियाज। चीजें तो आपने अदा कर दी हैं आगा भाई, मगर मुसर्रत की वसीयत वक्तन। फिजा चच्ची ने इस्तिराब से पहलू बदला। ओहो फिजा, अभी इसकी माँ को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं। ताई मेहताब ने निगाहों से तंबीह की। मगर भाई, मुसर्रत ने कहा था कि जल्द अज जल्द। रहने तो फिजा, हम इसका फैसला महमल पर छोड़ चुके हैं। इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, मगर एटलीस्ट इसे बता तो दें। अभी इसका गम तो हल्का होने दो। फिर इनकी दबी दबी सरगोशियां इसे बेचैन कर गई। ताई अम्मा, क्या बात है? अम्मा ने कुछ कहा और भी कहा था क्या? सब एकदम खामोश से होकर एक दूसरे को देखने लगे। महमल, तुम्हें कुछ दिन तक बताऊंगी, अभी इस किस्से को छोड़ दो प्लीज। ताई अम्मा, मुझे बताएं। मगर तुम्हारा गम अभी। मैं ठीक हूँ, मुझे बताएं। इसने बेचैनी से बात काटी। ताई मेहताब ने एक नजर सबको देखा, फिर कदरे हिचकिचा कर गोया हुई। बात यह है कि मुसर्रत ने मरने से पहले वसीम को बुलाकर इन सब के सामने तुम्हारे आगा जान से कहा था कि अगर वो बच न सके तो जितनी जल्दी हो हम महमल को वसीम की दुल्हन बनाकर सहारा दें, इसको बेआसरा न छोड़ें। और तुम्हारे आगा जान ने इससे वादा कर लिया है कि वो ऐसा ही करेंगे। वो अपनी जगह सुनसी हो गई। जमीन जिसे कदमों तले से सरकने लगी थी और आसमान सर से हटने लगा था। अम्मा ने ये सब कहा? हाँ, ये सब लोग जो यहाँ हैं इस बात की गवाह हैं, तुम किसी से भी पूछ लो। वो एकदम बिल्कुल चुप ही हो गई। अजीब सी बात थी, इसे यकीन न आ रहा था। लेकिन महमल, हमने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया। तुम चाहो तो ये शादी करो, चाहो तो ना करो। हमने तुम्हें इसलिए आगाह कर दिया कि ये तुम्हारी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी। ये तुम पर मुनहसर है कि तुम इसकी बात रखती हो या नहीं। हम में से कोई तुम पे जोर नहीं डालेगा। वो सर झुकाए कासनी डब्बे को देख रही थी। जहन में जैसे जकड़ चल रही थी। मगर ये डब्बा और लिफाफा सबूत था कि ये वसीयत वाकई इसकी माँ ने की थी। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम अगले जुम्मे को निकाल रख लेते हैं। ये मुसर्रत की ख्वाहिश थी, ये काम जल्द अज जल्द किया जाए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम जो चाहोगी वही होगा। बेताब ताई इतना कहकर खामोश हो गई। इसने हौले से सर उठाया। सुनहरी पलकें फिर से भीग चुकी थी। कमरे में मौजूद तमाम नफूस दम साधे इसे देख रहे थे। मैं अपनी माँ की बात का मान रखूंगी। आप जब कहेंगी मैं शादी में करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो रुकी नहीं। डब्बा और लिफाफा उठाकर
तेजी से कमरे से निकल गई। वो किचन में कुर्सी पे बैठी थी, हाथ में सुबह और शाम की दुआओं और अज़कार की किताब थी और मुंह मुनहमिक सी पढ़कर दुआ मांग रही थी। हमने सुबह की फितरत इस्लाम पे और कलमा इखलास और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे और अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे, जो यकसू मुसलमान थे वो मुशरिकों में से न थे। महमल, किसी ने जोर से किचन का दरवाजा खोला। इसने चौंक कर सर उठाया। सामिया अजलत में अंदर दाखिल हुई थी। तुमसे कोई मिलने आया है, ड्राइंग रूम में है, जाओ मिल लो। कौन है? वही पुलिस वाला, वो कहकर पलट गई। हुमायूं आया है। वो कितनी ही देर किताब हाथ में लिए बैठी रही, फिर आहिस्ता से इसे बंद किए स्लीप पे रखा, लिबास की शिकने दुरुस्त की और स्याह दुपट्टा ठीक से सर पे लेकर बाहर आ गई। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज आ रही थी, जैसे दो लोग गुफ्तगू में मशगूल हों। ये हुमायूं से कौन बातें कर रहा है? वो लचती हुई अंदर आई। ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल के दरमियान सफेद जालीदार पर्दा था। वो पर्दे के पीछे जरा देर को रुकी। सामने बड़े सोफे पे हुमायूं बैठा था। इसके बिलमुकाबिल सिंगल सोफे पे आरजू बैठी थी, टांग पे टांग रखे, आधी पिंडली तक ट्राउजर पहने वो अपने मखसूस बेनियाज हुलिये में थी, कटे हुए बालों में हाथ फेरती वहां सच पर हुमायूं से कुछ कह रही थी। जाने क्यों इसे ये अच्छा ना लगा। इसने हाथ से पर्दा समेटा और अंदर कदम रखा। वो जैसे इसे देखकर कुछ कहते कहते रुका और फिर बेख्तियार खड़ा हो गया। ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट में मलबूस वो हमेशा की तरह बहुत शानदार लग रहा था। आका जान इसे पसंद नहीं करते थे, मगर फिर भी इसे अंदर आने दिया गया था, शायद इसलिए कि अब वो इनकी बहू बनने वाली थी और इसको वो नाराज नहीं करना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम, वो आहिस्ता से कहकर सामने सोफे पे बैठ गई। आरजू के चेहरे पे जरा सी नागवारी उभरी, जिसे हुमायूं ने नहीं देखा था। वो पूरी तरह महमल की तरफ मुतवज्जह था। मुझे मिसेज इब्राहिम की डेथ का पता बहुत देर से चला। मैं कराची गया हुआ था, आज ही आया हूँ। फरिश्ते ने जैसे ही बताया मैं आ गया। आई एम वेरी सॉरी महमल। वापस सोफे पे बैठते हुए वो बहुत ताज्जुब से कह रहा था। महमल ने जवाब देने से पहले एक नजर आरजू को देखा। आरजू बाजी, आप जा सकती हैं, अब मैं आ गई हूँ। हाँ श्योर। आरजू उठ खड़ी हुई। मगर जाते हुए इनको शादी का कार्ड दे देना। मिसेज आया मुस्कुरा कर वो गोया जता गई थी। महमल के सीने में हुक सी उठी। किसकी शादी? वो चौंका। महमल की शादी वसीम के साथ। आपको नहीं पता एसपी साहब, इसी फ्राइडे इनका निकाह है, आप जरूर आइएगा। मैं आपका कार्ड निकलवा देती हूँ। फिर ये वो खुशदिली से कहती बाहर निकल गई। कितने ही लम्बे खामोशी की नजर हो गई। ये क्या कह रही थी? वो बोला तो इसकी आवाज में हैरत थी, बेपनाह हैरत। ठीक कह रही थी। वो सर झुकाए नाखून खुरचती रही। मगर क्यों महमल, आप गालबन ताजियत के लिए आए थे। पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ। इसने तिलमिला कर सर उठाया। ये मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। मरते वक्त उन्होंने यही वसीयत की थी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो इनकी डेथ के वक्त मस्जिद में थी। हाँ, मगर उन्होंने आका जान से कहा था। सब लोग वहाँ मौजूद थे, सब गवाह है। तुम वो मुठिया भेज कर रह गया। इसका बस नहीं चल रहा था वो क्या कर डाले। तुम इंतहाई बेवकूफ और अहमक हो। मैं अपनी माँ की बात का मान रखना चाहती हूँ, इसमें क्या हमाकत है। वो चिढ़ गई। नादान लड़की, तुम्हें ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, इस्तेहसाल कर रहे हैं। करने दे, आपको क्या। वो पैर पटक कर खड़ी हो गई। आप मेरे कौन हैं जो मुझसे पूछगछ कर रहे हैं? मैं जो भी हूँ मगर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो भी साथ ही खड़ा हुआ। इसकी आवाज में बेबसी थी। कभी ये ही बात इसने बहुत अखड़ लहजे में भी कही थी जब वो मस्जिद के बाहर इसे लेने आया था, इस रात की सुबह जो इसकी जिंदगी उजाड़ गई थी। अगर आपके दिल में मेरी माँ का जरा सा भी एहतराम है तो मुझे वो करने दे जो मेरी माँ चाहती है। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते, इसी में कोई बेहतरी होगी। आप जा सकते हैं। वो एक तरफ हट कर खड़ी हो गई। इसी पर पर्दा हटाकर आरजू नमूदार हुई। आपका कार्ड, आइएगा जरूर। इसने मुस्कुराकर कार्ड हुमायूं की तरफ बढ़ाया। हुमायूं ने एक कहर आलूद नजर कार्ड पे डाली और दूसरी महमल पे, फिर लंबे डग भरता बाहर निकल गया। नो प्रॉब्लम। आरजू ने शाने उचकाकर कार्ड लिए वापस मुड़ गई। अम्मा, वो कराह कर सोफे पे गिर सी गई। ये अम्मा से किस मझदार में छोड़कर चली गई थी। क्यों किया उन्होंने ये फैसला? क्यों अम्मा? वो दोनों हाथों में सर गिराए सोचती रह गई। सारे घर में दबा दबा सा शादी का शोर उठ चुका था। गो के बड़ा भी सिर्फ निकाह था, मगर मेहताब ताई भरपूर तैयारियां कर रही थी। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि फवाद जल्द ही वापस घर आ रहा था। इस खबर से महमल पे तो कोई असर ना हुआ, अलबत्ता ताई अम्मा अपनी अंदरूनी खुशी छुपाए सब कुछ महमल पे डाल गई थी। सोच रहे हैं थोड़ा सा गहमा गहमी वाला फंक्शन रख ले ताकि महमल का दिल बहल जाए, वरना सच पूछो तो मुसरत के जाने के बाद से वो बहुत बुझ सी गई है। अब हमारा दिल तो नहीं चाहता कि शोर हंगामा हो, मगर बस महमल अच्छा महसूस करे, इसलिए वो किसी न किसी को हर वक्त फोन पे वजाहतें दे रही होती थी।
محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹاتی رہتی جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی. نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی. ہاں، مسجد وہ ابھی نہیں جا رہی تھی. مسجد جا کر سکون ملتا تھا اور فی الحال وہ سکون نہیں چاہتی تھی. وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی. مسرت کا یا شاید اپنا وہ نہیں جانتی تھی. فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی آہستہ سے رومال چھوڑ کر اٹھی. سٹینڈ پر رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمل نسوانی آواز ریسیور میں گونجی. وہ لمحے بھر میں ہی پہچان گئی. فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ہمایوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم. فرشتے قدر پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی. ہمایوں ہر بات آپ کو جا کر کیوں بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کیا کریں. مگر محمل تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی. پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں. محمل اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا. اوکے چلو اب ہمایوں سے بات کرو. ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا. اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور وہ فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ اوہو ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہی آواز ابھری. کیوں محمل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. وہ تنزیہ بولا تھا. ہاں شیور، کیوں نہیں. جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا. اللہ حافظ. اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا. غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہا تھا. فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پہنچ کر رومال اس کا انتظار کر رہا تھا. بیوٹیشن نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پہ رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی. محمل بدھ بنی اسٹول پہ بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی. بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑے اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی. وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پہ سلور سلما ستارے کا کام تھا. ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹیکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا. جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا. وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی. گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے. مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا. اور سنا تھا آج تو فواد بھی آ گیا تھا. پھر کاہے کا ماتم؟ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے. اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے 2 ماہر بیوٹیشن لڑکیاں بلوائی تھی جو کافی دیر سے اس پہ لگی ہوئی تھی. دفتر باہر لاؤنج سے آوازیں گونجی. وہ ذرا سی چوکی. کیا فواد آ گیا تھا؟ یہ آواز تو سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو. بے چینی سے اس نے بیوٹیشن سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا. سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا. تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی. فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی. محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا. وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی. آدھ کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی. سیاہ ابائے کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ ہالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی. محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے. اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی. فرشتے آئے یا فواد اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. مگر ہم تمہارے گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے. نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں. وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو. فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا. وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی. دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں. پھر آپ گارڈ کو بلوا لیں کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں. سوری. تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق مسز کریم، میں موبائل پہ بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں. مجھے ڈسٹرب مت کریں اور پلیز محمل کو بلا دیں. وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پہ چہرہ جھکائے ہوئے مصروف تھی. محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی. فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی بلکہ وہ اپنی ازلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی. البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی. اسے لگتا تھا وہ کبھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی. محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو. آغا جان کی آواز میں موبائل پر مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا. وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے.
अस्सलाम वालेकुम करीम चचा। वो मोबाइल रखकर उठ खड़ी हुई, चेहरे पे अजली एतमाद और सुकून था। फरिश्ते, तुम यहाँ से जा सकती हो, आप मुझे निकाल सकते हैं। वो जरा सी मुस्कुराई। आपको लगता है करीम चचा कि आप मुझे निकाल सकते हैं? मैंने कहा यहाँ से जाओ। वो एकदम गुस्से से दौड़े थे। मैं भी इतना ही ऊंचा चीख सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं यहाँ ये नहीं करने आई हूँ, मैं सिर्फ महमल से मिलने आई हूँ। वो सीने पे हाथ बांधे पुरएतमाद सी इनके सामने खड़ी थी। लाउंज में सब इकट्ठे होने लगे थे। लड़कियां एक तरफ खड़ी लाइन से इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थी। असद चचा, गुफरान चचा, फिजा चची और नायमा चची भी वहीं आ गई थी। हुसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से उतर आया था। लाउंज में बीचों बीच आगा जान के सामने खड़ी वो दराज कद सियाह अबाया वाली लड़की कौन थी? बहुत सी आंखों में सवाल था। तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुमसे नहीं मिलेगी, सुना तुमने? आप यही बात महमल को बुलवा कर पूछ लेना करीम चचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहाँ से उठकर आ गई हो। तुम फौरन निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जान, ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। उन्होंने पलटकर इतनी बुरी तरह से झड़का कि हसन खाइफ सा हो गया। हटो। ब्यूटिशियन का हाथ हटाकर वो उठी और कामदार दुपट्टा संभालती नंगे पांव बाहर को लपकी। आप मुझसे मिलने आई हैं? लाउंज के सिरे पे वो रुक कर बोली तो सबने चौंक कर इसकी तरफ देखा। फरिश्ते जरा सा मुस्कुराए। करीम चचा कह रहे थे कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। महमल, तुम अंदर आ जाओ। ताई मेहताब परेशान से आगे बढ़ी। आगा जान, ताई अम्मा, फरिश्ते को मैंने खुद शादी में इनवाइट किया है, आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकती हैं? तुमने? ताई मेहताब भौंच की रह गई। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ, और ये कैसे नहीं जानती होंगी? इनके उस आशिक की अजीजा है ना ये? कोई तमस्कराना अंदाज में कहता सीढ़ियों से उतर रहा था। महमल ने चौंक के गर्दन उठाई। वो फवाद था। हशाश बशाश चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट लिए इनके सामने आ खड़ा हुआ। ये कौन है? फरिश्ते ने कदरे नागवारी से इसे देखकर महमल को मुखातिब किया। ये इस मुल्क में कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है, जिनको कानून ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकता। एक जताती नजर फवाद पे डालकर इसने चेहरा मोड़ लिया था। आप अंदर आ जाएं फरिश्ते, बैठ कर बात करते हैं। हरगिज नहीं। ताई तेजी से आगे बढ़ी। महमल, ये लड़की फ्रॉड है, ये सिर्फ इब्राहिम की जायदाद के पीछे है। वो तो आप भी हैं मेहताब आंटी, और शायद इसीलिए आप महमल को बहू बना रही हैं। इसने फरिश्ते को किसी से इतनी दुरुस्ती से बात करते आज पहली बार देखा था, मगर इसे हैरत नहीं हुई थी। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मैं बीच में बोलूंगी, महमल के लिए मैं जरूर बोलूंगी। वो पलटी और महमल को दोनों कंधों से थामकर अपने सामने किया। महमल, मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? ये तुम्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं इस शादी पे? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला है। मैं इस पे खुश हूँ। फरिश्ते एकदम चुप सी रह गई। इसके शानों पे इसके हाथ ढीले पड़ गए। सुन लिया तुमने, अब जाओ। आगा जान ने सजाया सर झटका और दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर वो इनकी तरफ मुतवज्जा ना थी। महमल, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया? वो दुख से इसे देख रही थी। जब किसी को अपना मुखलिस दोस्त कहा जाता है और अपने दोस्त की मोहब्बत और खुलूस के दावे किए जाते हैं, तो इतने बड़े फैसलों से कबल इसे मुतला भी किया जाता है। मैं आपको बताने ही मैं अपनी बात नहीं कर रही। फिर कौन? वो चौकी। क्या हुमायूं इसका नाम? इसने बहुत आहिस्ता से लिया। वो मजीद इसके करीब आई और इसकी आंखों में देखते धीरे से बोली, मैं अपने मुसीब की बात कर रही हूँ, जिसके उतारने वाले से तुमने समाना वताना, हमने सुना और हमने अतात की का वादा किया था। क्या तुमने इसे बताया? फरिश्ते, वो बिना पलक झपके इसे देख रही थी। अल्लाह को सब पता है, मैं क्या बताऊं? क्या तुम्हें दिन में 5 बार इसे अपनी अतात का बताना नहीं पड़ता? फिर अपने फैसलों में तुम इसे कैसे भूल सकती हो? महमल टुकर टुकर इसका चेहरा देखने लगी। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फरिश्ते क्या कह रही है, क्या समझ जाना चाह रही है। मगर मैंने नमाज तस्बीह कुछ नहीं छोड़ा, मैं सारी नमाजें पढ़ती हूँ। वो दोनों बहुत मध्यम सरगोशियों में बात कर रही थी। लेकिन क्या तुमने इसकी सुनी? इसने कुछ तो कहा होगा तुम्हारे फैसले पर। फरिश्ते ने अभी तक इसे कंधों से थाम रखा था। वो यकटक इसे तके जा रही थी। महमल, तुम इसकी बातें सुनती तो सही, इससे पूछती तो सही। तुम कुरान खोलो और सूरह मायदा का तर्जुमा देखो। इसकी आवाज में तासुब घुल गया। महमल ने एक झटके से इसके हाथ अपने शानों से हटाए। इसे लगा इससे गलती हो गई है। मैं अभी आती हूँ, आप जाइएगा नहीं। वो कामदार दुपट्टे का पल्लू उंगलियों से थामे नंगे पांव भागती हुई कमरे की तरफ चली गई। मोहतरमा, आप जा सकती हैं। फवाद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये मेरे बाप का घर है, इसमें ठहरने के लिए मुझे आपकी इजाजत नहीं चाहिए। वो रुखाई से कहते सोफे पे बैठी और फिर से मोबाइल उठा लिया। फवाद और आगा जान ने एक दूसरे को देखा, निगाहों में इशारों का तबादला किया। फिर आगा जान गहरी सांस लेते हुए सोफे पे बैठ गए।
तकरीब के शुरू होने में 2-2.5 घंटे रहते थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ था। मुहम्मद दौड़ते कदमों से अपने कमरे में आई, दरवाजे की चटखनी चढ़ाकर वो शेल्फ की तरफ लपकी। सबसे ऊपर वाले खाने में इसका सफेद जिल्द वाला मुसहफ रखा था। इसने धड़कते दिल के साथ दोनों हाथों से ऊपर रखा मुसहफ उठाया और आहिस्ता से इसे दोनों हाथों में थामे अपने चेहरे के साथ मने लाई। इसे सब याद रहा था, सिर्फ ये भूल गया था क्यों। वो इससे मजबूती से पकड़े बेड पे आ बैठी और कवर खोला। वो सूरह माइदा की 106 आयत थी। जिस वक्त क्लास में मुसर्रत की मौत की खबर की वजह से इसे बुलवाया गया था, इस वक्त यही आयत पढ़ाई जा रही थी। ए ईमान वालों, जब तुम में किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो चंद अल्फाज पढ़कर इसका दिल बुरी तरह से धड़का। इसने जोर से पलकें झपकी। क्या वो सब कुछ वाकई इधर लिखा था? वसीयत, मौत का वक्त, वसीयत। मुसर्रत ने मरते वक्त वसीयत की थी, तुम्हारा रिश्ता वसीम से। बहुत सी आवाजें जहन में गुड़गुड़ होने लगी। वो सर झटक कर फिर से पढ़ने लगी। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो इसके लिए शहादत का नसाब ये है कि तुम्हारी जमात में 2 साहिब अदल आदमी गवाह बनाए जाएं, या अगर तुम सफर की हालत में हो और वहाँ मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर लोगों ही में से 2 गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर इनकी बताई हुई वसीयत में कोई शक पड़ जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वो कसम खाकर कहें कि हम किसी फायदे के एवज शहादत बेचने वाले नहीं हैं, पाक कोई हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम इसकी रियायत करने वाले नहीं और ना खुदा ना ख्वास्ता की गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में शुमार होंगे। वो साकित सी इन अल्फाज को देख रही थी। इसकी आंखें पथरा गई थी। कुरान को थामे दोनों हाथ बेजान से हो गए थे। क्या वो सब वाकई यहाँ लिखा था? मगर कैसे? वसीयत, 2 अफराद की कसम खाकर गवाही, रिश्तेदार, ये सब तो इसके साथ हो रहा था। वो पलक तक ना झपक पा रही थी। इसका दिल जैसे रौब से भर गया था, रौब से और खौफ से। यकायक इसे लगा इसके हाथ कँपा रहे हैं, इसे ठंडे पसीने आ रहे हैं। वो बहुत भारी किताब थी, बहुत भारी, बहुत वज़नी, वो जिसका बोझ पहाड़ भी ना उठा सकते हो। वो कैसे उठा सकती थी? इसे लगा इसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। वो अब मजीद ये बोझ नहीं उठा पाएगी। वो आम किताब नहीं थी, अल्लाह की किताब थी और इसके लिए, खास इसके लिए उतारा था। हर लफ्ज़ एक पैगाम था, हर सत्र एक इशारा थी। इसने इतनी जल्द जिंदगी ज़ाया कर दी। इसने ये पैगाम कभी देखा ही नहीं। महमल, तुमने इतनी उम्र बेकार गुजार दी। ये किताब खिलाफ में लपेट कर बहुत ऊपर सजाने के लिए तो न थी, ये तो पढ़ने के लिए थी। हर दफा की तरह आज फिर इस किताब ने इसे बहुत हैरान किया था। सोचना समझना तो दूर की बात, वो तो मतहयर सी इन अल्फाज को तके जा रही थी। ये सब क्या था? कैसे इस किताब को सब पता होता है? क्योंकि ये अल्लाह की किताब है। नादान लड़की, ये अल्लाह की बात, इसका पैगाम खास तुम्हारे लिए। तुम लोग ना सुनना चाहो तो ये अलग बात है। किसी ने इसके दिल से कहा। वो कौन था? वो ना जानती थी। दरवाजा खुलने की आवाज में सबने चौंक कर इस तरफ देखा। वो आहिस्ता से चली आ रही थी। कामदार दुपट्टे का किनारा थोड़ी के करीब से इसने 2 उंगलियों में ले रखा था। इसके चेहरे की रंगत कुदरे सफेद पड़ी हुई थी, या शायद या कुछ और जो इन्हें चौंका गया। वो धीरे धीरे चलती हुई इनके सामने आ खड़ी हुई। आगा जान, इसने इनकी आंखों में झांका। वो इसके अजनबी लहजे पे चौंक से गए। हाँ बोलो। मेरी माँ की वसीयत के वक्त मौजूद लोगों में से कौन से 2 लोग असर की नमाज के बाद अल्लाह के नाम की कसम उठाकर गवाही देंगे कि उन्होंने ये वसीयत की थी या नहीं? पल भर को लाउंज में सकूत सा छा गया। फरिश्ते ने मुस्कुराहट दबाकर सर नीचे कर लिया। आका जान हैरान से खड़े हुए। क्या मतलब? आपको पता है सूरह माइदा में लिखा है, नमाज के बाद आप में से 2 लोगों को अल्लाह के नाम की कसम उठाकर गवाही देनी पड़ेगी। क्या बकवास है? वो हंसते तवक्को भड़क उठे। तुम्हें हमारी बात का एतबार नहीं है तुम? वो गुस्सा जब्त करते मुठिया भींच कर रह गए। तब ही निगाह फरिश्ते पे पड़ी तो इसने फौरन शाने उचका दिए। मैंने तो कुछ नहीं किया करीम चचा, तुमसे तो मैं बाद में, आप लोग गवाही देंगे या नहीं? वो इनकी बात काट कर जोर से बोली थी। फिर चेहरे का रुख सोफों पे बैठे नफूस की तरफ मुड़ा। कौन था इस वक्त आप में से इधर? कौन देगा गवाही? कौन उठाएगा कसम? बोलिए, जवाब दीजिए। सब खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसे इसके सारे जवाब मिल गए थे। काश वो पहले इस आयत को पढ़ लेती तो इतना गलत फैसला ना करती। सही कहता है अल्लाह ताला, हमारी बहुत सी मुसीबतें हमारे अपने हाथों की कमाई हुई हैं। तो आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। बहुत बेहतर, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। इसने माथे पे झूलता टीका नोच कर सामने फेंका। नाजुक सा टीका एक आवाज के सामने मेज के शीशे पे गिरा।
اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے گہری سانس لی، مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ، میری بات کا گھر ہے، میں تو نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا، وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھے فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے، تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی، میری بہن کو چھوڑو۔ وہ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد نکاح خواہ کو ابھی بلواؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو تو سکتے میں رہ گئی تھی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑو۔ ایک دم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا تھا۔ فواد اس لمحے حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دم بھکلا کر وہ پیچھے کو ہٹا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چراتی محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت کہتا، فضا نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں! وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پہ مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف کو گری، منہ میں اس کے کونے سے لگا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو پہ چہرے پہ رکھے روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بات فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹری بنی چند قدم پیچھے کھینچتی گئی، اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو ڈھلک گیا، بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پہ بکھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے گا میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹری بنی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو پیر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا رہا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے گئی تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کے نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیے کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ آہستہ سے الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ چکی، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو فوراً یقین کر لیں گے نا؟ اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسو سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن؟ تم اپنی بہن کے ساتھ گئی تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، خود فرشتے بھی سن رہی گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوفزدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں وہ مشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہ کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں۔ فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے۔ وہ بہت سکون سے بولا، گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی
हाँ, हम इसीलिए तो महमल की शादी वसीम से करवाना चाहते हैं। फवाद, आगा जान ने तंबीही नजरों से इसे टोकना चाहा। मुझे बात करने दे आगा जान। हाँ तो महमल, हम इसीलिए तुम्हारी शादी वसीम से कर रहे हैं। तुम्हें मंजूर है ना? क्योंकि फरिश्ते के साथ तो तुम जा नहीं सकती, अब तुम्हें शादी तो करना ही होगी। नहीं नहीं, वो बेख्तियार वहशत से चिल्लाई, मैं नहीं करूंगी ये शादी। महमल, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें शादी करना पड़ेगी। वो बगौर इसकी आंखों में देख कर कहता आहिस्ता आहिस्ता इसे चारों तरफ से घेर रहा था। काश मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकती आगा फवाद, मगर मैं हामिलीन कुरान में से हूँ, ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? फरिश्ते ने तनफ्फुर से इसे देखा। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है, तुम गलत कर रहे हो एक यतीम लड़की के साथ। ये तो हम काफी सालों से कर रहे हैं। यकीन कीजिए, हम पर कभी कोई तूफान नहीं आया। तुम इस तूफान की खबर तब होगी जब वो तुम्हारे सर पर आप पहुंच जाएगा। अल्लाह से डरो, तुम्हें इस यतीम पर जुल्म करके क्या मिलेगा? तो आप इस जुल्म का हक में क्यों नहीं बदल लेती? क्या मतलब? वो चौकी, वो जवाब दिए बिना इस पे नजर डालता महमल की तरह मुतवज्जा हुआ, जो जमीन पे बैठी सर उठाए इसे टुकर टुकर देख रही थी। एक सूरत में मैं तुम्हारी शादी वसीम से रोक दूंगा, और चाहो तो तुम अपनी बहन के साथ चली जाओ। हम खानदान वालों को कुछ नहीं बताएंगे, फिर फरिश्ते जहाँ चाहे तुम्हारी शादी करवा दे, हमारा पूरा खानदान शरीक होगा। क्या तुम वो सूरत इख्तियार करना चाहोगी? महमल के चेहरे पे बेयकीनी उतर आई। वो बिना पलक झपके फवाद का चेहरा देखने लगी। सिदरा, मेरी बेड साइड पर टेबल पर जो कागज पड़ा है वो लेकर आओ, और साथ पेन भी। इसने महरीन और रिंदा के साथ दीवार से लेकर खामोश खड़ी सिदरा को इशारा किया, जो इसकी बात सुनकर सर हिलाते हुए तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपकी। तुम क्या कहना चाहते हो? खतरे का अलार्म दूर कहीं बजता फरिश्ते को सुनाई दे रहा था। यही कि महमल की शादी रुक सकती है, वो तुम्हारे साथ जा सकती है अगर। इसने सीढ़ियों से उतरती सिदरा को देखा, जो भागती हुई आई और इसे कागज कलम पकड़ा दिया। अगर तुम दोनों ये पेपर साइन कर दो। ये क्या है? फरिश्ते का लहजा मोहतात था। मुझे मालूम था कि आप निकाह के वक्त ड्रामा करने जरूर आएंगी, इसीलिए हमने पहले से इंतजाम कर रखा था। आपको क्या लगता है हमें इल्म नहीं था कि आप महमल से मिलकर इसे क्या पट्टियां पढ़ाती हैं? हमें सब पता था मुहतरमा, ये भी कि महमल कब कब आपकी कजन से मिलती रही, मगर इस वक्त के लिए हमने आंखें बंद कर रखी। आपकी क्या शर्त है? वो बात करें, उस लहजे में बोली। ये फरिश्ते इब्राहिम और महमल इब्राहिम का ऐलान दस्तबरदारी है। इस घर, फैक्ट्री और आगा इब्राहिम की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से ये दोनों बहनें दस्तबरदारी का ऐलान करती हैं और हर चीज हमारे हवाले करती हैं। ये कभी भी हमसे किसी भी मौरूसी मलकियत से हिस्सा मांगने नहीं आएंगी। और आप जानती हैं कि बदले में हम वसीम की शादी महमल से नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स, ये आखिरी बात इस कागज पे नहीं लिखी गई। फरिश्ते के चेहरे पे पहले उलझन उभरी, फिर हैरत और फिर वाज़ेह बेयकीनी। तुम हमें हमारे हक से हमारे घर से बेदखल करना चाहते हो? बिल्कुल सही। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आगा फवाद? तुम, इसकी बेयकीनी और तहय्युर गुस्से में बदल गया। तुम हमें हमारे घर से बेदखल कैसे कर सकते हो? हमारा घर है, हमारे बाप का घर है, इस पे हमारा हक है। हमें जरूरत है पैसों की, महमल की पढ़ाई है और फिर इसकी शादी के लिए हमें इन सब के लिए पैसों की जरूरत है। ये हमारा दर्द सर नहीं। तुम ये साइन कर दो तो महमल की जान वसीम से छूट जाएगी, मगर हम तुम्हें अपना हक क्यों दें? क्योंकि इन सब पर मेरे शोहर और बेटों का हक है। ताई मेहताब चमक कर कहती आगे बढ़ी। इब्राहिम की वफात के वक्त ये बिजनेस दिवालिया हो चुका था। मेरा शोहर दिन रात मेहनत ना करता तो ये बिजनेस कभी स्टेब्लिश ना हो सकता था। अगर इतने ही मेहनती थे आपके शोहर और बेटे, तो मेरे अब्बा की डेथ के वक्त बेरोजगार क्यों फिर रहे थे? और तुम, वो फवाद की तरफ पलटी, और वारिस तो अल्लाह ने बनाए हैं, हम कैसे अपना हक न ले? फरिश्ते बीबी, ये प्रॉपर्टी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगी। अभी कुछ देर में मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी। शादी वाला घर है, जरा सी बात का पतंगर बन जाएगा। और बदनामी किसकी होगी? सिर्फ महमल की। अव्वल तो इसको वसीम से शादी करना ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप यूं ही अड़ी रही तो ठीक, हम खानदान में कह देंगे महमल किसी के साथ भाग गई, किसी का खानदान छूटेगा, किसका मेका बदनामी के बायस छूटेगा। आप खुद फैसला कर सकती हैं। वो कहते कहते जरा देर को रुका। वो तासुब से देख रही थी। आगा फवाद, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? वो हौले से मुस्कुरा दिया। हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, अपना हक ही मांग रहे हैं। खैर, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप और महमल इस पे दस्तखत करो, अपने हैद से दस्तबरदार हो जाए। हम बाइज्जत तरीके से शादी कैंसिल कर देंगे। आप महमल को अपने साथ ले जाइएगा। आप जिससे चाहें जब चाहें इसका निकाह करा दें। हम भरपूर शिरकत करेंगे, बल्कि पूरा खानदान शिरकत करेगा। ये घर महमल का मेका रहेगा। वो जब चाहे इधर आ सकती है, मगर इसकी मलकियत में आप दोनों में से किसी का कोई हिस्सा नहीं होगा। लीजिए, इसने कागज कलम इसके सामने किए।
कर दीजिए साइन। मगर फवाद आगा जान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तय महताब ने इनका बाजू थाम लिया। इसे बात करने दे, वो ठीक कह रहा है। हाँ, फरिश्ते ने सर झटका। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी इस ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी? बल्कि आपको तो इसकी बात अभी अधूरी थी कि इसे अपने दाएं हाथ पर दबाव महसूस हुआ। इसने चौंक कर देखा, महमल इसका हाथ पकड़कर खड़ी हो रही थी। इसका कामदार दुपट्टा सर से ढलक गया था, बिखरी बूढ़ी लटे गालों को छू रही थी, आंसुओं ने काजल धो डाला था। वो बदिक्कत फरिश्ते का सहारा लेकर खड़ी हुई। इसके अंदाज में कुछ था कि इसका माथा ठनका, और इससे पहले कि फरिश्ते इसको रोक पाती, इसने झपट कर फवाद के हाथ से कागज कलम छीना। किधर करने हैं साइन, बताओ मुझे, वह हंसियानी कैफियत में चिल्लाई थी। फवाद जरा सा मुस्कुराया और अपनी उंगली कागज पे एक जगह रखी। नहीं महमल, फरिश्ते को झटका लगा था, हमारे पास कई रास्ते हैं, हमें इनकी ब्लैकमेलिंग में आने की जरूरत नहीं। मगर मुझे है फरिश्ते, मैं अब तंग आ चुकी हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई जायदाद, कोई माल दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले ले, सब ले ले। वो धड़ाधड़ साइन करती जा रही थी, आंसू इसकी आंखों से बराबर गिर रहे थे। फरिश्ते साकत सी से देखे गई। इसने तमाम दस्तखत करके कागज और कलम फवाद की तरफ उछाल दिए। ले लो सब कुछ। तुम लोगों को अल्लाह से डर नहीं लगता? मैं अब तुमसे अपना कोई हक नहीं मांगूंगी, छोड़ती हूँ मैं अपने सारे हकूक। वो कहते कहते निढाल सी सोफे पे गिर गई और गहरी सांसें लेने लगी। वो वाकई थक चुकी थी, टूट चुकी थी। फवाद ने कागज सीधा करके देखा, फिर फातहाना मुस्कुराहट के साथ इर्द गिर्द खामोश और बेयकीन बैठे हाजरीन पर एक निगाह दौड़ाई, फिर फरिश्ते की तरफ पलटा। महमल ने दस्तखत कर दिए हैं, अब आप भी कर दे। इसने कागज कलम इसकी तरफ बढ़ाया, मगर फरिश्ते ने इसे नहीं थामा। वो अभी तक सख्ते के आलम में महमल को देख रही थी। दस्तखत करो बीबी और इसे ले जाओ। महताब ताई ने आगे बढ़कर इसका शाना हिलाया तो वो चौकी, फिर नागवारी से इनका हाथ हटाया। फवाद के बड़े हाथ को देखा। नहीं, तुम महमल को नफसियाती तौर पर घेर कर बेवकूफ बना सकते हो। ये छोटी है, कम अकल है, मगर फरिश्ते ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। मैं हर किस साइन नहीं करूंगी। और मैं क्यों करूँ साइन? मुझे जरूरत है अपने हिस्से की। मुझे पीएचडी भी करना है, मुझे बाहर जाना है। मैं इसकी बात अधूरी रह गई। फवाद ने कागज कलम मेज पर फेंका और सोफे पर बैठी महमल को गर्दन से दबोच कर उठाया और अपने साथ निढाल की तरह रखते हुए जाने कहां से पिस्तौल निकालकर इसकी गर्दन पर रखा। अब भी नहीं करोगी तुम साइन? वो गुर्राया। फरिश्ते सन्नाटे में आ गई। फवाद ने बाजू के हल्के में इसकी गर्दन दबोच रखी थी। वो शौक के बायस कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। सख्त गिरफ्त के बायस इसकी आंखें उबल कर बाहर आने लगी। बेख्तियार वो खांसी। अपनी बहन से कहो कि शराफत से साइन कर दे, वरना मैं गोली चला दूंगा। और तुम जानती हो कि मैं कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत हूँ। यही कहा था ना तुमने मेरे बारे में? इसके कान के करीब मुंह ले जाकर इसने बजाहिर सरगोशी की। मैं कहा, मगर सबके कानों तक इसकी सरगोशी पहुंच गई। सबको गोया सांप सूख गया। हसन ने आगे बढ़ना चाहा, मगर फिजा ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या कर रहे हो? अगर इसने गोली चला दी तो ये मर जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो? उन्होंने बेटे को घुरका तो वो बेबसी से खड़ा रह गया। बोलो फरिश्ते बीवी, तुम साइन करोगी या नहीं? इसने पिस्तौल की ठंडी टाल महमल की गर्दन पर चुभोई। वो सिसक कर रह गई। बोलो फरिश्ते, वो जोर से चीखा। नहीं, वो जैसे होश में आई। मैं साइन नहीं करूंगी। इसका लहजा अटल था। मैं 3 तक गिनूंगा फरिश्ते। अगर मैंने गोली चला दी तो तुम्हारी बहन कभी वापस नहीं आएगी। फरिश्ते प्लीज, महमल बिलख पड़ी। प्लीज मेरी खातिर फरिश्ते, आज आप अपना हक छोड़ दे। मैं वादा करती हूँ अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके लिए अपना हक छोड़ दूंगी। आई प्रॉमिस। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा। फरिश्ते ने देखा इसकी उंगली ट्रिगर पर मजबूत हुई और वो वाकई गोली चलाने वाला था। 1 लम्हा भर को इसका दिल कांपा। अगर वो गोली चला दे तो महमल मर जाएगी। फिर भले वो हुमायूं को बुला ले, कोर्ट कचहरी में गवाहियां देती फिरे, कुछ भी कर ले, इसकी बहन वापस नहीं आ सकेगी। 2 भले फवाद को फांसी हो जाए और वो सारी जायदाद की मालिक बन बैठे, इसकी बहन वापस नहीं आएगी। रुको, मैं साइन कर दूंगी, वो शिकस्त खोरदा लहजे में बोली। लेकिन आपको महमल की शादी इसी वक्त वहाँ करना होगी जहाँ मैं कहूँगी, और इसमें ना सिर्फ आप सब बल्कि आपका पूरा खानदान शरीक होगा। महमल इसी घर से रुखसत होगी। मंजूर है, फवाद झट बोला था। महमल फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। फरिश्ते क्या कहना चाह रही है वो नहीं समझ पाई। फिर इसने हसन को देखा जो इसी तरह बेबस सा खड़ा था। फिजा ने सख्ती से इसका बाजू थाम रखा था। बेबस और कमजोर मर्द, वो जो इतने दावे करता था, सब बेकार गए थे। ठीक है, फिर ने कहा, ख्वाह को बुलाइए, मैं हुमायूं को बुलाती हूँ। इसने झुककर मेज पे रखा मोबाइल उठाया। हुमायूं दाऊद? फवाद को गोया करंट लगा था। जी वही। फरिश्ते तलखी से मुस्कुराकर सीधी हुई। बोलिए, अब आपको ये मुआहिदा कबूल है?
हुमायूं दाऊद, वो एसपी, वो पुलिस वाला? नहीं, हरगिज नहीं। बहुत सी हैरान गुस्सीली आवाजें उभरी थी, जिनमें सबसे बुलंद आगा जान की थी। वो शख्स इस घर में कदम नहीं रख सकता जिसने मेरे बेटे को जेल भिजवाया था। तुम्हें दस्तखत नहीं करना तो ना करो, मगर मैं महमल की शादी कभी इससे नहीं करूंगा। मैं आपसे बात नहीं कर रही करीम चचा, मैं ये मुआहदा आका फवाद के साथ कर रही हूँ। इन्हीं को बोलने दीजिए ना। मगर नहीं आगा जान, कोई मसला नहीं है, आप बुलाइए इसको, हमें कबूल है। वो संभल चुका था, चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई थी, मगर फवाद ये कल गुम कर गई तो? आगा जान ने परेशानी से इसका शाना पकड़कर अपनी जानिब किया। ये नहीं मुकरेंगी, ये तो माशाल्लाह से मुसलमान हैं, ये वादे से नहीं फिरेंगी। मुसलमान को तोड़कर कहते हुए इसने इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट फरिश्ते की जानिब उछाली। वो लब भींचे तनफ्फुस से इसे देखती रही। ठीक है, आप बुलाइए अपने कजन को, फंक्शन तो आज होना ही है। असद अब तक निकाह ख्वाह का बंदोबस्त कर चुका होगा। वो प्राण चचा मसरूफ से लहजे में कहते दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इनकी जैसे जान छूट गई थी। फिजा से भी अपने इत्मीनान और खुशी छुपाई नहीं चुप मुश्किल हो रही थी। इन दोनों को गोया अपना बेटा वापस मिल गया था, फिर भी वो हसन का बाजू मजबूती से थामे खड़ी थी, मगर अब शायद वो रस्सी तोड़ाकर भागने के काबिल ना रहा था। इसको तो आसरा ही खत्म हो गया था। आओ अंदर चलो। फरिश्ते ने थके थके अंदाज में मोहम्मद का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लिए इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। सब गर्दन मोड़ कर इन्हें जाता देखने लगे थे। पूरे घर में अजीब सी खामोशी दौड़ गई थी। वो सब किसी ख्वाब किसी कैफियत में हुआ था। शायद वो एक हसीन ख्वाब ही था जिसकी ताबीर की इसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। बहुत सारे ख्वाब तोड़ने पड़े थे, मगर इसे इस वक्त वही सही लगा था। ये ना करती तो वो लोग इसे खानदान भर में बदनाम कर देते, इसके मरहूम माँ बाप का नाम उछाला जाता, या फिर सबसे बड़ी वजह वो थी जो फवाद को भी मालूम थी और जिसको इसने इस्तेमाल किया था। महमल की दुखती रग, इसका खानदान इसको इज्जत से ब्याह दे। इसे दौलत से ज्यादा अपने मुकाम और इज्जत चाहिए थी, और फवाद से इसी दुखती रग को ऐसे दबाया था कि इसका दिल तड़प उठा था। वो फैसला जज्बाती था, मगर इसे सही लगा था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।